Hello students, I hope that you all are safe at home and welcome you all to the academic year 2020-21 and thanks to all the members of our management and our principal sir for giving us this opportunity to interact through online lecture. Students, I'll be taking your cost accounting for TYBCom. Some important points to be discussed. There are some points which I want to discuss with you all before starting with the study. Always carry your notebook, calculator and other writing material while attending the lecture because this subject is practical subject. Class, we all know that for practical subject we always need notebook to write and make notes. No doubt that I will provide you with the PDF. I'll provide you that, but still I want you all to prepare your own notebook. I know that because of lockdown, you people will not be able to go out and purchase new notebook. It's okay. I want you to do one thing, that if suppose you have a book which you have made use of it in your last year, but 20-30 pages ही use किए, ज़्यादा नहीं use किया तुमने. Rest of the book is still remaining. So you can make use of that book. It's okay. But I want you all to please make a proper note and make your own notebook because this will help you out while preparing for the subject. PDF भी मिल जाएगा, no doubt, but still prepare your own notes. Okay. You all know my way of teaching. I always discuss what I'm going to teach you today. What will be our content of the day? So this is our content of the day. Introduction of all the chapters. I will give you the overview of all the chapters. We will discuss about the question paper pattern, types of accounts, and what is cost accounting, and types of cost and objective of cost accounting. I think I have shifted to this topic in our next lecture, but definitely I'm going to cover this also. Okay. Name of the chapter. Students, there are different chapters, but one thing which I want to tell you all is cost accounting is one of the easiest subject of your TYBCom because this subject is based on two things. Number one, formula. Second one, format. अगर तुम्हें ये दो चीजें आती है ना तो कुछ भी तुम्हें टफ नहीं होगा. फॉर्मूला एंड फॉर्मेट. ऑलवेज रिमेंबर, अगर तुम्हारा फॉर्मूला क्लियर है और फॉर्मेट तुम्हें सब आता है, बिकॉज दिस टू चैप्टर format based and especially this one format based, classification and of cost and cost sheet format based है. This chapter, this 3 chapter is formula based, completely formula based. और ये लास्ट में फॉर्मूला नहीं है बट फॉर्मेट होगा. सो फॉर्मूला एंड फॉर्मेट हमेशा याद रखना. ये दो चीजें अगर तुम्हारी स्ट्रांग है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में नो वन कैन बीट यू. आई कैन गारंटी यू कि 70 अबव सबको आएगा ही आएगा अगर एग्जाम हुआ तो, होपफुली. सो I am expecting this from you people, that you all will be thorough with your two things, formula and format. So our chapter number 1 is Introduction to Cost Accounting. Class, this chapter is nothing but just an introduction. You might be knowing it. In our management accounting also there was chapter number 1 which was Introduction to Management Accounting, जिसमें थोड़ा सा theoretical part था, right? And you all know the importance of theory, right? Question number 5 is your theoretical part. Your second chapter is material cost. Class, material cost chapter is completely formula based chapter. Yes, यहाँ पर थोड़ा format based भी आ जाएगा, but it's okay, formula based भी है, ये दोनों है इसमें mix. Labor cost chapter is completely formula based. यहाँ पर तुमसे formula पूछा जाएगा कि हेनरी फेयोल बोल रही हूँ, रोवन, हाल्से, फिर गैंट प्लैंक, इन सब का फॉर्मूलाज तुमसे पूछा जाएगा, राइट? तो ये सब डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने अलग अलग फॉर्मूलाज दिए, जिनमें से दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोवन एंड हाल्से. आई विल टीच यू एवरीथिंग. ओके. थर्ड वन इज योर ओवरहेड्स. ओवरहेड्स चैप्टर इज अगेन फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर. ठीक है. This one is your classification of cost and cost sheet. Here you will have to study the format of cost sheet. If you remember, in your management accounting I taught you format of vertical balance sheet and vertical P&L account,
right? So here I'll be teaching you format of cost sheet. Same as that one, this one will be format based. एक बार format आ गया तो कुछ नहीं, तुम्हें बस ये पता करना है कि कौन सा चीज कहाँ जाएगा, that's it. And finally format बना के you have to post it. Now last but not the least, reconciliation of cost and financial account. This chapter is also very much tricky and format based, but trust me, I'll give you one trick to understand how to reconcile the cost sheet and financial account. If you remember, you have done it in your FYBCom, 11th standard. If you remember, तुम करते थे BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, वहां पर तुम क्या टैली करते थे, पासबुक एंड कैश बुक, राइट? यहाँ पर एंट्री हो गई है, वहां पर नहीं हुई तो क्या होगा, ऐड होगा, लेस होगा, यही करते थे हम। कैश बुक को पासबुक तक लेकर जाते थे या तो पासबुक को कैश बुक तक लेकर जाते थे ऐड लेस के थ्रू। सो सेम यहाँ पर भी तुम्हें करना है। यहाँ पर तुम्हें दो अकाउंट दे दिया जाएगा, एक कॉस्ट शीट और एक फाइनेंशियल अकाउंट। सो तुम्हें इन दोनों के बीच में टैली करना होगा। I hope that I made this clear to you all, and slowly and steadily we all are going to understand this. Here is our question paper. Student, question paper pattern, we all know it is same as our previous year, but still I will discuss it with you once again to remind you. Question number 1 will be your objective type question. It is divided into two parts, A and B. A part में you know 12 objectives पूछे जाते हैं, but you have to attempt any 10. B part में भी any 12 questions पूछे जाते हैं, you have to attempt any 10. But I always suggest this to my student, don't look at this 10. You always have to attempt this 12 because there are minor chances कि आपसे कुछ गलती हो जाए, तो गलती ना हो इसलिए attempt completely. Question number 2 will be your practical question or practical question, 20 marks. Either you have to attempt this or you have to attempt this. Question number 3 again same as the question number 2, practical question or practical question. You have to attempt any one from these two, right? Question number 4 again same as the above, either or type. Either you have to attempt this or you have to attempt this. Question number 5, last but not the least, this is your completely theoretical question. Even though your paper is practical, but still theoretical part is also been covered. So question number A is theory question, question number B is theory question, 10 marks, or you will have a short notes. कितना पूछा जाएगा, 6. तुम्हें कितना attempt करना है, 4. And out of these 6 questions you have to attempt any 4 question. या तो तुम ये short notes 4 attempt कर लो, या तो ऊपर के 2 question attempt कर लो. Choice is yours, completely yours. Note, practical question of 20 marks may be divided into 2 sub questions of 10 marks each. Class, ये जो तुम्हें practical question दिख रहा है 20 marks, ऐसा भी हो सकता है कि question number 2A B, getting my point? ये जो दिख रहा है question, इसे 2 part में divide कर दिया जाएगा, A B, 10 marks. Formula based कोई भी chapter से पूछ लिया जाएगा या कुछ भी पूछा जाएगा, I don't know. I'll let you know about it later on. But as of now, इतना समझ लो कि इसे 2 part में भी डिवाइड किया जा सकता है. और आई होप दैट आई मेड इट क्लियर टू यू ऑल. नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर स्टडी. टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. स्टूडेंट्स, there are majorly 3 types of accounts. Number 1 is your financial accounting, second one is your management accounting, and third one is your cost accounting. Students, you have already studied this, right? And this second year में भी था, first year में भी था, अभी TY में भी है. You all are already studying it. You know about it. I need not to go into that. This subject, management accounting, as you all know, I have already taught you this subject. And this year I will be taking your cost accounting. Clear? So in our last year, we have studied distinguish between management accounting and financial accounting. So this year, I'll be teaching you distinguish between financial accounting and cost accounting. Let us all start. Point number 1, objectives. What is the objective of financial accounting? Financial accounting, financial performance and position.
फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, तुम्हारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है और तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, क्लियर कट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, असर्टेन द कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग ये बताता है कि तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में कितना कॉस्ट जा रहा है ओवरऑल। सपोज कोई कंपनी प्रोडक्ट ए बनाती है, प्रोडक्ट बी बना रही है और प्रोडक्ट सी बना रही है। कंपनी को ऑन एन एवरेज ठीक ठाक कंपनी चल रही है। नाउ कंपनी वांट्स टू नो कि हमारा किस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लॉस कर रहा है, कौन सा प्रॉफिट कर रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग तुम्हें बताएगा कि प्रोडक्ट ए के कितना प्रॉफिट कर रहा है, बी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना सेल हो रहा है। एवरीथिंग यू विल कम टू नो बिकॉज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो इट इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल। पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। फाइनेंशियल अकाउंट शोज ओवरऑल कॉस्ट एंड प्रॉफिट लॉस। ये तुम्हें ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात नहीं करेगा। वी ऑल नो financial accounting always shows the overall view. Cost accounting shows detail of each product. I told you, process, job, contract account, etc. मतलब यहाँ पर ये एक एक चीजों पे फोकस करता है. If you are producing 3 products A, B, C and you want to know कि कंपनी को कौन सा प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है, किस में क्या हो रहा है, सो यू विल बी एबल टू सी इट थ्रू द कॉस्ट अकाउंटिंग. तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सब नहीं बताएगा, वो ओवरऑल प्रॉफिट बता देगा, बट पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात ये नहीं करता. कंट्रोल रिपोर्ट, एम्फेसाइज ऑन रिपोर्टिंग, एम्फेसाइज ऑन कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग. स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट को तुम्हारे खर्चे तुम्हारे बचत से कोई लेना देना नहीं है. फाइनेंशियल अकाउंट को क्या करना है, अगर खर्चा हुआ है तो उसे रिकॉर्ड कर लो और प्रॉपर एंड एक्यूरेट उसका रिजल्ट दिखाओ. बट कॉस्ट अकाउंटिंग को रिपोर्ट तो करना ही है, बट उसके साथ साथ कहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पर अननेसेसरली खर्चा हो रहा है, इन तीन प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेनिफिशियल है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग. Decision making, limited use, designed for decision making. Students, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी डिसीजन मेकिंग में यूज होता है. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं यूज होता है, बट इसका यूज कंपैरेटिवली लिमिटेड है. बट कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फाइनेंस. ओके, इसका मेन पर्पज ही है कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने का कि इट विल गिव यू सपोर्ट फॉर टेकिंग डिसीजन. Responsibility does not fix responsibility, can effectively fix responsibility. तुम अपने अकाउंटेंट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं दोगे ना कि तुम मुझे कॉस्ट कंट्रोल करने का तरीका बताओ. नो, यू कैन नॉट से दैट. अकाउंटेंट हैव वन सिंगल वर्क कि जितना भी खर्चा हो रहा है, जो भी इनकम आ रहा है, वो सब डिस्कस करो, वो सब डिस्कस बोल रही, सॉरी आई एम सॉरी, वो सब रिपोर्ट करो, रिकॉर्ड करो. बट कॉस्ट अकाउंटिंग का फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमें कॉस्ट कैसे कंट्रोल करना है वो बताओ. ठीक है. टाइम फ्रेम, फोकस ऑन हिस्टोरिकल डेटा, फोकस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. क्लास, एवरीवन नोस कि फाइनेंस अकाउंट कब बनता है. फाइनेंशियल अकाउंट कब बनता है, जब तुम्हारा लास्ट ईयर ऑलरेडी यू हैव डन एवरीथिंग, ट्रांजैक्शन लास्ट ईयर हो चुका है, सबके एंड में एक साथ तुम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना करके दे देते हो. इट मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज सपोज तुम्हारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च, तो तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्ट 31 मार्च के बाद बनेगा. इवन तो तुम साल भर रिकॉर्ड कर रहे हो, बट फाइनल रिपोर्ट कब बनता है, एंड में बनता है. तो इट इज इट इज हिस्टोरिकल डेटा एंड दिस फोकस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. कॉस्ट अकाउंटिंग में तुम प्रेजेंट देखते हो कि अब ये कॉस्ट प्रोडक्ट बनाने में कितना कॉस्ट जा रहा है और फ्यूचर में हमें कितना कंट्रोल करना है, मतलब इट फोकसेस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. नाउ पॉइंट नंबर 7, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स. फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट लाइक P&L अकाउंट, तुम्हें भी पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आता है. P&L अकाउंट आता है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, राइट. इट जनरेट्स स्पेशल रिपोर्ट एंड एनालिसिस. कॉस्ट अकाउंटिंग में डिपेंड करता है कि तुमसे क्या मांगा गया. अगर तुमसे डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट मांगा गया है तो तुम डिपार्टमेंट वाइज दोगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या सीन चल रहा है, परचेज डिपार्टमेंट का क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट का क्या. इट मींस डिपार्टमेंट वाइज भी रिपोर्टिंग मांग सकता है, प्रोडक्ट वाइज मांग सकता है कि प्रोडक्ट ए का बताओ कि क्या चल रहा है, प्रोडक्ट बी में क्या प्रोसेस है, प्रोडक्ट सी का क्या प्रोग्रेस है. इट मींस लाइक दैट, डिपेंड्स ऑन द
requirement of the management. Legal need. We all know financial accounting is statutory. You have to make it. There is no option as such. You have to prepare it. But in case of cost accounting, it is voluntary, except for some cases. Class, what is except for some cases? Students, the company who are manufacturing company and who are making huge profit, so कॉस्ट अकाउंटिंग बनाना उनके लिए कंपलसरी हो जाता है. बट छोटे मोटे जो फर्म्स होते हैं जो कि छोटा मोटा कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत नॉमिनल लेवल पे उनका प्रॉफिट हो रहा है, उनके लिए कंपलसरी नहीं होता ये किसके लिए कंपलसरी है? बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, जैसे टाटा स्टील्स या जो बड़ी बड़ी जैसे मारुति, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो इनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बनाना जरूरी है. दे आर अर्निंग इन क्रोर्स. बट जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लाइक यू ऑल अंडरस्टैंड, जो छोटे मोटे फर्म्स होते हैं, घरगुती हेल्प से भी जो प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, तो उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग मैंडेटरी नहीं है. तुम्हें जरूरत है तो बनाओ, नहीं जरूरत है तो मत बनाओ. क्लियर? नेक्स्ट वन इज योर ट्रांजैक्शन. रिकॉर्ड्स एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस. Records internal and external transactions. What is that? Students, external transactions मतलब कंपनी ने आउटसाइडर को क्या दिया, आउटसाइडर ने कंपनी को क्या इन रिटर्न दिया, मॉनिटरी वाइज, वही यहाँ पर रिकॉर्ड होगा. इंटरनली डिपार्टमेंट में कौन किसको क्या दे रहा है, उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कोई लेना देना नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? इंटरनली डिपार्टमेंट में कुछ चल रहा है, यहाँ वहां पैसे जा रहे हैं या प्रोडक्ट यहाँ से वहां पास ऑन हो रहा है, फाइनेंस अकाउंट हैव नथिंग टू डू विद दैट. बट दिस कॉस्ट अकाउंटिंग हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ये इंटरनल भी देखेगा कि इंटरनली कौन किसको कितना प्रोडक्ट पास ऑन कर रहा है, या किस डिपार्टमेंट से किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा गया या प्रोडक्ट गया. एवरीथिंग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन बोथ विल बी कंसिडर हियर. रीडर, एवरीबॉडी, इंटरनल मैनेजमेंट. रीडर मींस कौन इनका यूज करता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी ऑल नो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो लिटरली पब्लिश हो जाता है. कहाँ पब्लिश होता है? कंपनी के प्रोस्पेक्टस में. वी ऑल नो दैट पार्ट कि कंपनी का जब प्रोस्पेक्टस बनता है तो उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लियर कट रहता है. यहाँ पर तुम P&L अकाउंट देख सकते हो, बैलेंस शीट देख सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हो, राइट. बट कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओनली फॉर इंटरनल मैनेजमेंट. इसका यूज सिर्फ कंपनी अपने यूज के लिए करती है, इसे बाहर के लोगों के लिए पब्लिश नहीं किया जाता. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. फॉर्मेट्स. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फॉर्मेट स्टैंडर्ड होता है. इफ यू रिमेम्बर, मैंने तुम लोगों को सिखाया होगा और मैंने तुम्हें बताया होगा कि ये तुम अपने हिसाब से आगे पीछे नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, वर्टिकल स्टेटमेंट. वर्टिकल स्टेटमेंट में मैंने बताया था पहले क्या आएगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद ये आएगा. एवरीथिंग वाज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, इफ यू रिमेम्बर, राइट. तो ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो मैंने कहाँ से पढ़ाया था? टेक्स्ट बुक से. और टेक्स्ट बुक में कहाँ से मिला था? स्टैंडर्ड फॉर्मेट. Everyone is following the standard format, right? But in case of cost accounting, it is tailor-made. Tailor-made मतलब, sorry, trailer बोला मैंने, tailor-made. Tailor-made मतलब क्या होता है? As per your requirement चलेगा. तुमसे जिस तरीके का रिपोर्टिंग मांगा है तुम उसी तरीके का रिपोर्टिंग दे दो. It's okay because ये internal use हो रहा है ना. इंटरनल यूज है तो तुम कैसे भी चला लोगे काम. बट व्हेन इट कम्स टू एवरीबॉडी यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड एंड रूल. आई होप दैट टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल. लास्ट 2 पॉइंट्स. एक्सेस. एक्सेस मतलब इन्हें कौन कौन रीड कर सकता है? एवरीबॉडी एक्सेप्ट फॉर सम. एक्सेप्ट फॉर सम मतलब कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर को भी मिल सकता है बट वो कब? जब पब्लिश हो गया. तो पब्लिश होने से पहले इट विल नॉट बी अवेलेबल टू देम. तो कंपनी अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अवेलेबल रखती है थ्रू प्रोस्पेक्टस. बट व्हाट अबाउट दिस? इट इज वेरी लिमिटेड. तुमने कभी किसी कंपनी का कॉस्ट शीट देखा है? कंपनी ने तुम्हें दिखाया होगा? नो, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू एवरीवन, राइट. इट इज फॉर इंटरनल यूज ओनली. यूनिट ऑफ वैल्यू. मॉनिटरी एंड फिजिकल. मॉनिटरी मतलब फाइनेंस में तुम सिर्फ एक ही कॉलम बनाते हो, दैट इज अमाउंट. तुमने कभी यूनिट्स का कॉलम बनाया है या पर यूनिट का ही कॉलम बनाया है? कॉस्ट पर यूनिट? नो, नेवर.
हमें सिर्फ टोटल अमाउंट से लेना देना कि पूरे पैसे कितने गए बता दो, पूरे पैसे कितने आ रहे हैं वो बता दो। हमें यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट से, कॉस्ट पर यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। बट इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इन्हें मॉनिटरी रिकॉर्डिंग भी करनी होती है और फिजिकल। फिजिकल मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, कि किसी प्रोडक्ट कितना नंबर ऑफ यूनिट है। जैसे सपोज इफ आई राइट अमाउंट में 10,000, राइट, तो इट विल आस्क मी कि यूनिट कितना था। हो सकता है एक यूनिट का ही 10,000 लग गया या 100 यूनिट का लगा, तो they are keen to know about it, कि monetary as well as in the number of stock. Students, this topic is important from exam point of view, so you should study thoroughly. Next, cost accounting involves determining fixed and variable cost. Fixed costs are expenses that recur each month regardless. Wait for a minute, right? Okay, done. Yes, where I was? Yes, cost accounting. Cost accounting involves determining fixed cost and variable cost. Fixed costs are expenses that occur each month regardless of the level of production. Example included in rent, depreciation, interest on loans, lease, etc. कुछ नहीं है तुम्हें. We all are aware about the fixed cost and variable cost. What is fixed cost? I have already taught you in management accounting, if you remember. If you don't, it's okay. Again मैं तुम लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ. फिक्स कॉस्ट वो होता है जो कि तुम्हारे प्रोडक्शन पे जरा भी डिपेंडेंट नहीं होता है. इफ यू रिमेम्बर, मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था क्लासरूम का. सपोज ऐसा होता है कि मैं कोई एक क्लासरूम रूम रेंट पे ले लेती हूँ, ठीक है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत आएंगे एंड मेरा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, मुझे ट्यूशन लेना है, तो मैंने एक रूम रेंट पे ले लिया, ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, कोई नहीं आया क्लास में क्योंकि स्टार्टिंग था बिजनेस का. नन ऑफ द स्टूडेंट हैव जॉइन माय क्लास. तो तुम्हें लगता है मुझे रेंट देना होगा या नहीं देना होगा? ऑफ कोर्स आई हैव टू गिव, बिकॉज लैंडलॉर्ड तो बोलेगा तुमने इस रूम में लेक्चर लिया नहीं लिया, तुमने क्या किया, आई डोंट नो, आई हैव गिवन यू फॉर 1 month, आई वांट माय रेंट. गेटिंग माय पॉइंट? तो वो क्या हो जाता है, मेरा फिक्स कॉस्ट. मतलब मेरा काम हुआ नहीं हुआ उस पर वो डिपेंड नहीं करता. एग्जाम्पल रेंट. डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने एक साल मशीन यूज ही नहीं किया तो प्लीज इसका रेट कम मत करो, इससे मैंने 10 लाख में खरीदा था 10 लाख में ही बेचो, ऐसा नहीं हो सकता. अगर मैं इसे एक बार खरीद चुकी हूँ और इसको एक साल मैंने अपने पास रख लिया, इट मीन्स वो सेकेंड हैंड हो चुका है और उसका डेप्रिशिएट होगा रेट, तो वो भी फिक्स होता है. इंटरेस्ट ऑन लोन. तुमने लोन लिया है तो तुम्हें तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा. अब तुमने सपोज तुमने घर कोई लोन पे ले लिया एंड आफ्टर दैट तुम उधर वहां पर रहने ही नहीं गए और तुमने वो घर लोन पे लिया था, तो तुम क्या कहोगे कि हम रहे नहीं इसलिए हम लोन नहीं देंगे? नहीं, तुम वो घर में रहो मत रहो, योर चॉइस, बट यू हैव टू पे द लोन. सो देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस व्हिच आर फिक्स. फिक्स का मतलब क्या होता है कि वो तुम्हारे प्रोडक्शन यूज नहीं यूज करने किसी पे भी डिपेंड नहीं करता. तुम यूज करो मत करो, तुम प्रोड्यूस करो मत करो, बट यू हैव टू पे इट. रेंट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, फिक्स्ड कॉस्ट का, ठीक है. Next, cost accounting involves determining fixed and variable cost. Fixed costs are expenses that recur at each month regardless of the level of production. बोला था ना, इसे तुम्हारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है. अगर मेरे क्लासरूम में एक स्टूडेंट नहीं आया तो भी मुझे रेंट देना पड़ेगा 10,000. अगर 10 स्टूडेंट आ गए तो भी मुझे रेंट 10,000 ही देना होगा. क्लियर? एग्जाम्पल रेंट, दिस एंड दैट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, आई थिंक I have already taught you this. Okay, next. Variable cost. A cost that varies with the level of output. It means, for example, there are certain things जो कि output पे depend करती है. Clear my point? For example, your electricity bill. Actually, electricity bill भी पूरे तरीके से variable नहीं होता, वो semi variable होता है. I'll tell you why. Because suppose तुमने अपने वही मेरे क्लासेस का रेंट ले लो, सॉरी एग्जांपल ले लो. सपोज वो क्लासेस में मैंने खुशी खुशी एसी लगवा दिया, फैन लगवा दिया, लाइट लगवा दिया, एवरीथिंग आई हैव फिक्स्ड, बट कोई स्टूडेंट आया ही नहीं, तो इसका मतलब क्लास स्टार्ट ही नहीं हुआ. लेकिन फिर भी मुझे लाइट बिल आएगा, एकदम मिनिमम अमाउंट आएगा बट आएगा, तो फिक्स्ड होता है.
लिटिल बिट अमाउंट फिक्स्ड होता है। उसके बाद अगर सपोज नेक्स्ट मंथ से मेरा क्लासेस स्टार्ट हो गया एंड आई हैव स्टार्टेड यूजिंग लाइट, फैन, एसी, एवरीथिंग, तो अब बिल बढ़कर आएगा, तो वो हो गया वेरिएबल। अब मेरे यूसेज पे डिपेंड करता है कि मैं कितना यूज कर रही हूँ, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? आई होप कि तुम्हें फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल सब कुछ क्लियर हो चुका है। A variable cost is a corporate expense that changes in the proportion to production output. यानी कि तुम जितना प्रोड्यूस करते जाओगे वेरिएबल कॉस्ट उतना बढ़ते जाएगा। तुम कम प्रोड्यूस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगा, तुम ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज प्रोडक्शन वॉल्यूम, मतलब डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। दे राइज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज एंड फॉल एज प्रोडक्शन डिक्रीजेस। इसका मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट भी कम होते जाएगा। एग्जांपल्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन पैकेजिंग। गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुमने प्रोडक्शन ही कम किया तो तुम रॉ मटेरियल भी कम ही लाओगे। तुम्हें ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो तुम्हें ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। सेम इज देयर विद द पैकेजिंग। पैकेजिंग करने के लिए जो जो मटेरियल लगता है वो ज्यादा लगेगा अगर तुम ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो, और अगर तुम कम प्रोड्यूस करोगे तो वो कम लगेगा। as clear as that. I think this is getting okay. This is something new. Variable cost vary based on the amount of output, while fixed costs are same regardless of the production of output. कुछ नहीं, जो मैंने पहले पढ़ा दिया वो again repeated है. Example, variable cost include labor and cost of raw material. Labor कहाँ से आ गया variable में भाई? Variable में आ गया because suppose तुम्हारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, so you will need more labor to work for your company. And if suppose इंक्लूड कहां से, सॉरी लेबर कहां से इंक्लूड हुआ? सपोज तुम्हारी कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, यू विल नीड मोर लेबर, और अगर तुम्हारी कंपनी कम प्रोड्यूस कर रही है तो तुम्हारा कम लेबर में भी काम चल जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन। व्हाइल फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड लीज। लीज क्या होता है? लीज इज अ लॉन्ग टर्म रेंट। तुम किसी प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म, जैसे रेंट का जो एग्रीमेंट बनता है वो 1 साल या 2 साल का बनता है, बट लीज का बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो लीज भी रेंट टाइप का ही है, बट इट इज फॉर लॉन्ग टर्म। रेंट आई टोल्ड यू, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट एंड पेमेंट। इंश्योरेंस मतलब अभी सपोज तुमने कार इंश्योरेंस लिया और 1 साल में तुमने कार को अपनी जगह पे से हिलाया भी नहीं, तो भी तुम्हें इंश्योरेंस का अमाउंट तो देना ही पड़ेगा ना, प्रीमियम अमाउंट। तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते मैंने कार यूज नहीं किया सो आई विल नॉट पे एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस अमाउंट, यू हैव टू पे इट, राइट? सो दिस इज an एग्जांपल ऑफ दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टॉपिक तुम लोग प्लीज अच्छे तरीके से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज, whereas variable cost per unit does not change. Suppose कोई 1 यूनिट बनाने में मुझे 10 रुपीज लग रहा है, राइट? तो 2 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 20। यूनिट बढ़ा तो ये भी बढ़ा ना। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कभी चेंज नहीं होता। ये 10 था 10 ही रहेगा, मैं 10 बनाऊंगी तो वो रेट भी उस हिसाब से बढ़ेगा। whereas total variable cost will get change। अब ये 10 था, ये 20 हो गया ना, टोटल चेंज हुआ, यूनिट बढ़ा तो ये भी बढ़ा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पॉइंट पे तुम लोग अगर गौर दोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ। कुछ टफ नहीं है, इजी ही है। अगेन आई विल रिपीट, अगर तुमने एक प्रोड्यूस अगर तुमने 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो तुम्हें 10 रुपीज देना पड़ रहा है, तुमने 2 यूनिट बनाने लगे तो तुम्हें 20 रुपीज देना पड़ेगा। ये सेकंड यूनिट का भी 10 रुपीज ऐड हो गया, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा जैसे जैसे तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल नेवर गेट अफेक्टेड। 1 यूनिट पे जितना लग रहा था दूसरे में भी उतना ही लगेगा। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है फिक्स्ड कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस। चलो इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज ये मेरा क्लास है, ठीक है?
इसमें मैंने फैन लगवा लिया, ये लो हो गया, एसी लगवा लिया और लाइट भी लगवा ली। चलो हो गया, क्लास रेडी। सो इमेजिन ये रूम मैंने रेंट पे लिया एंड इस रूम में कोई भी बच्चा आकर के पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्लासेस नहीं अभी तक स्टार्ट हुआ, स्टिल आई हैव टू पे रेंट ऑफ 10,000 रुपीज, है ना, मुझे देना तो पड़ेगा ही। एंड सपोज नेक्स्ट मंथ अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट किया तो 10 स्टूडेंट्स ऐड हो गए। अब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगा। अब तक ये 10,000 10 स्टूडेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब एक मेरा 1,000 पर स्टूडेंट जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि मैं रेंट भर रही हूँ 10,000 और 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब 1,000। सपोज नेक्स्ट मंथ और एडवर्टाइजमेंट हो गया, बहुत ज्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट किया और 100 स्टूडेंट्स ऐड हो गए। अब डिवाइड करो 10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो अभी क्या हो गया, और रेट कम हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट मेरा फिक्स है, रेंट वाला नहीं मुझे बोल सकता कि तुमने अभी इस रूम में ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं तो ज्यादा रेंट दो। नो, 10,000 तो 10,000 ही रहेगा, बट पर यूनिट चेंज हुआ ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते गए तो। क्लियर? और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है वेरिएबल कॉस्ट में। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू ऑल, दैट यू ऑल हैव स्टडीड इट थरली, और तुम लोगों को ये सब अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आई नो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा न्यू है, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर के स्लाइड में भी ऐड कर लूंगी। अगेन आई विल डिस्कस इट विद यू ऑल एंड आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड इट very well. Thank you so much. Stay at your home, stay safe and study well. Thank you.